السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، ہر مسئلے پر ابہام کا شکار نظر آنے والی تحریک انصاف میں عمران خان کی عدم موجودگی کے باعث قیادت کا بحران اب صاف دکھائی دینے لگا ہے۔ الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہو یا پھر پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں کا مسئلہ، ججز کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی میں شمولیت کا ایشو ہو یا پھر سڑکوں پر احتجاج کی کال دے کر ڈی چوک پر قیادت کا کارکنوں کو اکیلے چھوڑنا، تحریک انصاف میرے کپتان کے بغیر ہر محاذ پر ناکام نظر آئی۔ آخر ان تمام ناکامیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ آج کے اس خصوصی پروگرام میں وہ 20 وجوہات بتاتے ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف اپنی کوشش کرنے کے باوجود ناکامیوں کے بھور میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، قائدین کی بہتات کی وجہ سے تحریک انصاف کا کارکن کنفیوژن کا شکار ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، موجودہ پارٹی قیادت پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کو بنیاد بنا کر ان کو کمپرومائز لیڈرشپ کہہ کر پارٹی کے اندر سے تنقید کرنا۔ پوائنٹ نمبر 3، عمران خان کی عدم موجودگی میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کی صلاحیت بے نقاب ہو گئی، سیکرٹری جنرل کے عہدے سے بار بار استعفے، لاہور کی تنظیم کو متعدد بار تبدیل کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 4، کریڈٹ لینے کی دوڑ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قیادت ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی عدم موجودگی میں کوئی بھی پارٹی رہنما کارکنوں کو گراؤنڈ پر لیڈ کرنے کو تیار نہیں، جو ہیں وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، باہر بیٹھے تحریک انصاف کے رہنما زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، سوشل میڈیا کارکن ایک دوسرے پر باریک وارداتیہ کہہ کر ٹرولنگ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، تحریک انصاف میرے ساتھ یا میرے خلاف کی پالیسی پر چل پڑی ہے، سیاست میں کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ پوائنٹ نمبر 9، بشرا بی بی کی رہائی کے بعد علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کو لے کر پارٹی قیادت اور کارکنوں کا بیک وقت کنفیوژن کا شکار ہونا۔ پوائنٹ نمبر 10، سیاست میں آخری کال، مرو یا مر جاؤ جیسے الفاظ کا استعمال کرنا، بعد میں پارٹی قائدین کی طرف سے کہنا کہ سیاست میں کوئی کال فائنل کال نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 11، تحریک انصاف کے رویے سے لگ رہا ہے کہ وہ سیاسی لبادہ اوڑھنے کے لیے تیار نہیں اور 2022 سے لے کر اب تک جہاں بات کرنا چاہیے تھی وہاں بات بن نہیں رہی اور سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، اب تحریک انصاف ٹیبل کے اس طرف ہے جہاں پر کبھی 2018 میں دوسری جماعتیں تھیں جو کل تک تحریک انصاف کو لاڈلا کہتے تھے، اب وہ لاڈلے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، بغیر کسی حکمت عملی کے طاقت کے زور پر وفاقی حکومت کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو عبور کرنا، کارکنوں سے جذباتی انداز میں مخاطب ہونا اور ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر قیادت کا کارکنوں کو تنہا چھوڑ دینا بھی تحریک انصاف کی ناکامیوں کی ایک وجہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، اپنی تمام اتحادی جماعتوں کے بغیر احتجاج کے لیے سولو فلائٹ لینا۔ پوائنٹ نمبر 15، عمران خان کے ساتھ ساتھ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں موجود دوسری سیاسی قیادت سے رابطہ نہیں کیا جا رہا۔ پوائنٹ نمبر 16، علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کی باز گشت، ڈی چوک میں ایک طرف کارکنوں کی اموات کی بات کی جا رہی تھی لیکن اچانک علیمہ خان کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ کنٹینر پر لائٹس اور ساؤنڈ سسٹم کو کیوں بند کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 17، 26ویں آئینی ترمیم میں اپنے ارکان کے حفاظتی اقدامات میں کوتاہی برتنا۔ پوائنٹ نمبر 18، ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر ٹرمپ کے امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر امریکہ کی طرف دیکھنا، کیا اپنے ہی لگائے ہوئے نعرے ہم کوئی غلام ہیں کی نفی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 19، تحریک انصاف کے اہم اجلاسوں اور میٹنگز کی پریس ریلیز جاری ہونے سے قبل ہی ان کی اہم تفصیلات کا لیک ہونا۔ پوائنٹ نمبر 20، بغیر کسی ثبوت کے عمران خان کی صحت کے بارے میں خدشات کا اظہار کرنا اور بار بار ڈی چوک میں لاشوں کی تعداد کا ذکر کرنا۔ 3 دن گزرنے کے باوجود تحریک انصاف کی طرف سے کوئی FIR درج نہیں کروائی گئی۔ ناظرین، یہ وہ 20 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف کے بے ترتیب بیانیے کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر اس عمارت کا ایک ستون بھی گر گیا تو عمارت زمیبوس ہو جائے گی۔ تحریک انصاف زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبولیت کے کارڈ کے ذریعے کب تک اپنی نااہلیوں پر پردہ ڈالتی رہے گی؟ اسی موضوع پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم نون سے ان کے رہنما اختیار ولی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ شعیب صاحب، یہ 20 پوائنٹس آپ نے بھی سنے ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں اب تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک بن رہے ہیں، لیکن ایک خاص پوائنٹ جو کم از کم پچھلے ہم 2 دن سے دیکھ رہے تھے، ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، وہ پتہ نہیں ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کے مختلف رہنماؤں نے مختلف قسم کی باتیں پھیلائیں۔ قاسم سوری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا جی ان کے چیمبر کے اندر، ان کے سیل کے اندر جو ہے وہ گیس چھوڑ دی گئی ہے، اور اس قسم کی باتیں کی گئی۔
आज आपकी पार्टी लीडरशिप जाके इमरान खान साहब से मिली है, उनकी सेहत भी ठीक है, वो वहीं अडियाला जेल में है, सारी की सारी ये अफवाहें थी। देखिए मंसूर साहब, पहली बात तो यह है कि जो आपने ये 20 पॉइंट्स बातें की हैं, कुछ आपकी अपनी ज़ारे एक असेसमेंट हो सकती है या कुछ लोगों की हो सकती है जी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कासिम सूरी की स्टेटमेंट का या बाकी लोगों का या सोशल मीडिया में आने वाली गुफ्तगू का, उसके बारे में परसों हमने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की और अपना इल्जामिया जारी किया कि ये ऐसी क़ियास आराइयों से इश्तराक किया जाए। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट हमारी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हमें उनकी ज़िंदगी, सेहत और सलामत के मुताल्लिक तशवीश है। तो बात यह है कि वो जो कोर्ट के आर्डर से उनकी नॉन कंप्लायंस थी, वो मुलाकातें इस कठपुतली हुकूमत ने मना कर रखी थी। ATC कोर्ट के आर्डर थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं बहुत सारे, और आखिरी बार पिछले हफ्ते एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये माफ़ीनामा देकर गए कि नहीं जी, आइंदा के लिए जो रेगुलर मुलाकातें हैं उनमें पाबंदी नहीं होगी। तो लिहाजा हमने उसकी नफ़ी कर दी थी। दूसरी बातें जो आपने की हैं कि देखें, इससे ज़्यादा बातें हमें सुनने को मिली थी 9 मई के बाद से लेकर 8 फरवरी से पहले तक, लेकिन उससे भी आप एक बात, ये जो पिछले 26 को जो कुछ हुआ, सारी बातें आपकी एक तरफ, लेकिन हम जो आपने कहा ना कि लीडर्स की बहुतात है, ये लीडर्स की बहुतात नहीं है, हम सब वर्कर्स हैं। लीडर तो वो थे ना जो सो कार्ड 9 मई के बाद या चले गए या भगा दिए गए। ठीक, आज हम सब वर्कर्स हैं, हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं इमरान खान साहब की तरफ से और हम अपनी जिम्मेदारियां अल्हम्दुलिल्लाह वो निभा रहे हैं। लेकिन अवाम और कौम को जिस तरीके से मेरा सवाल एक्चुअली कुछ और था सर, मेरा सवाल सिर्फ कुछ और था। मेरा सवाल आपसे ये किया था मैं कि क्या कासिम सूरी ने जो बयान दिया था वो झूठ था या नहीं था? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। नहीं तो हमने खुद कहा है कि उनको अवॉइड करना चाहिए। हमने परसों पॉलिटिकल कमेटी में ये इलामिया जारी किया, हमने उसकी तस्दीक नहीं की। हमने उनको भी कहा कि आप बगैर तस्दीक के ऐसी कोई भी इलामिया जारी कोई ना करे। हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने इलामिया बकायदा, लेकिन सर आपकी जमात से द प्रॉब्लम इज शुएब साहब, आपकी जमात से एक तरीके से बार बार झूठ बोला जा रहा है, एक बार नहीं कई बार। लतीफ़ खोसा 200 से ज़ायद अफराद के बारे में कहते हैं वो जाबाक हुए हैं। शहबाज गिल ट्वीट करता है कि जनाब 100 लोग जो हैं वो उनकी लाशें जो है वहाँ से उठाई गई। क्यों इस किस्म के झूठ बोले जाते हैं सर? कोई क्रेडिबिलिटी भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं होती? मंसूर साहब, पहले तो आप इस बात पे आ जाएं, हमारे झूठ को छोड़ें, मैं आपको तफसील बताता हूँ। पहले ये बता दें कि जो वजीर दाखिला है या वजीर इत्तलात है, उन्होंने कहा एक गोली नहीं चली, कोई एक बंदा जख्मी नहीं हुआ। I will ask that from the government, sir. I will ask that from the government, sir. I will ask that from the ये सर मेरे शुएब साहब ये जवाब नहीं है सर, ये जवाब नहीं है। अब मैं आपसे आपकी पार्टी का झूठ पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं नहीं वो देखें वो भी बोलते हैं, मैं उनसे पूछूंगा जब इख्तियार वली साहब की बारी आएगी उनसे पूछूंगा। You need to answer about your own party ना सर। आप जरा बहुत तेजी में जा रहे हैं ना, जरा सा समझ लें। चलिए समझाइए, आप समझाइए जी। क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से इन्होंने कत्ले आम किया है, ठीक है, इस कातिल हुकूमत ने, और उस कत्ले आम में जो लाशें लोग पहुंचा सके वहां पहुंचाई, जिन्होंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां से भाग गए या साइट पे हो गए, तो वहां की जो लाशें थी वो किस तरह गायब की गई। और अगर लाशें 12 से ज्यादा नहीं थी, जिसके ऊपर हमारी तहकीकात जारी है, मिसिंग पर्सन है, लोग ना जेल में हैं, ना थाने में हैं, ना वो हॉस्पिटल में हैं। ठीक, आज मुझे बताएं मतीउल्लाह जान को क्यों उठाया? सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कि वो लाशों पे तहकीकात कर रहा है, ठीक है, कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो चाह रहा है, हम भी तहकीकात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने ऑफिशियली वो एलामिया जारी किया जो हमारे पास ऑथेंटिक खबरें थी। नहीं ऑफिशियली हमने 12 कहा सर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना शुएब साहब, मैं ऑफिशियली किस चीज को लूँ ना सर, मैं ऑफिशियली किस चीज को लूँ? शहबाज गिल आपका लीडर है, शहबाज आपकी पार्टी का रहनुमा है या नहीं है? सुने, आप हर एक की इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जो एलामिया ऑफिशियल हमने जारी किया है वो किया है जो ऑथेंटिक था। बाकियों के बारे में तहकीकात हो रही है, हमारे पास इससे भी ज्यादा खबरें हैं। अच्छा, लेकिन हम जब तक उसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, हम कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी नहीं की। लिहाजा आपको, अगर आप ऑथेंटिक है ना सर, एक संजीदगी, अगर सर आप ऑथेंटिक है तो फिर मुझे इस चीज की इजाजत दे दीजिए कि मैं जब तक आप लोग नहीं ऑथेंटिकेट करते, आप लोग उसको जिम्मेदारी से नहीं लेते, तब तक मैं ये कहूं कि लतीफ खोसा और शहबाज गिल जो है अनऑथेंटिक है।
नहीं ऑथेंटिक। मैं ये कह सकता हूं इन दोनों के बारे में। उनके पास जो सुने उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, लेकिन जब एज ए पॉलिटिकल कमेटी या हमारी पार्टी जब ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जारी करती है, वो स्टेटमेंट है जो हमने ऑथेंटिक करके दी है, और हमने कहा बाकी की तहकीकात जारी हैं। देखें, जब डॉक्टर्स स्टेटमेंट देने से सर इसको झूठ कहते हैं। मैं शुएब साहब इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड से झूठ कहते हैं ना सर। ले जाएंगे नहीं सर, आप मुझे यहाँ से आप अंदाजा लगाओ ये बेईमानी और झूठ कौन बोल रहा है। सर मैं गवर्नमेंट से पूछूंगा ना सर, मैं गवर्नमेंट से अभी पूछूंगा, आपके सामने पूछूंगा शुएब साहब, मैं इनसे भी पूछूंगा अभी। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आप लोगों के लीडर्स, वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं झूठ, और उसके बाद आप लोग जब उसे ओन अप नहीं करते, आप क्यों कहते हैं बड़ी इजीली ये उनका ओपिनियन है। ये उनका नहीं है सर, ये उनका ओपिनियन इसलिए क्योंकि वो आपकी पार्टी के लीडर है ना सर, वो आपकी पार्टी के लीडर्स हैं। ऐसी बात नहीं है। जब आपका सुने जब आपके वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात, आईजी, चीफ कमिश्नर बैठ के झूठ घड़ रहे हूं, हाँ। उसके मुकाबले में लाशें वहां गिरी पड़ी हूं, लाशें हॉस्पिटल से मिल रही हूं। आपका अमीर मकाम इनका कहता है कि जी मेरे गांव का बंदा था, मैंने डीसी को, मैंने हॉस्पिटल वालों को फोन किया, मेरी सिफारिश पे वो लाश मिली। आपका शायद खाकान अब्बासी कहता है कि 2 मेरे गांव की लाशें हैं, बलूचिस्तान के आज हाफिज अब्दुल्ला मेरे साथ थे कि वहां बलूचिस्तान की 2 लाशें हैं। डेरा गाजी खान की लाश को जाकर के पिंडी से उनको दिया गया, हालांकि पिम्स पॉलीक्लिनिक में 2 दिन पड़ा रहा। उनको कहा जी एफिडेविट दे कि जी एक्सीडेंट में मरा है, तब हम आपको लाश देंगे, वरना नहीं देते। इसमें सर कितनी लाशों पे सियासत करेंगे शुएब साहब, कितनी जब आप लाशों को छुपाएंगे, जब उठा करके ले जाएंगे, आपको याद होगा कि यहाँ सर हाउ मेनी एफआईआर, सर एफआईआर आज तक पूरी लाशें नहीं, सर आपने एफआईआर कितनी कटाई हैं इन अफराद के हवाले से? कितनी एफआईआर कटी है के लिए? आप हाल ही में एफआईआर काटी है सर, आपने ट्राई किया? हैव यू ट्राइड इट? हैव यू ट्राइड इट? सुन ले, हमने तहकीकात के नतीजे में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जुडिशियल कमीशन की भी दरखास्त दे रहे हैं, और लतीफ खोसा साहब को हमने पटिशन्स बनाने की जिम्मेदारी दे दी है। ठीक है, वो लतीफ खोसा जो 278 अफराद के बारे में कह रहे थे। ठीक, देखिए 278 है। देखिए, एक है गैर तस्दीक शुदा जो हमारे तक इंफॉर्मेशन है, एक है तस्दीक शुदा। मैं कहता हूँ एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ पे मैं और आप इकट्ठे हैं, मैं आता हूं सर, आपके पास दोबारा आता हूं। इख्तियार वली साहब, सर बड़े सीरियस इल्जामात हैं हुकूमत के ऊपर। आपने शुएब साहब की बात सुनी, मैंने उनके हवाले से जो बात है वो तो है, लेकिन आप लोगों की साइड से भी ये टोटली एक झूठ को मैन्युफैक्चर करने का इल्ज़ाम आपकी हुकूमत के ऊपर लग रहा है। और मैं देख रहा था मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, और यहाँ तक कह देना नहीं जनाब है ही कुछ नहीं, एक भी बंदा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। अब हम किस तरह बिलीव करें, मुझे ये समझाइए। कल वजारत दाखिला की जानिब से प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी या तो अमवात भी हुई हैं और लोग जख्मी भी हुए हैं, किस तरह इसका फैसला किया जाए? इख्तियार साहब। थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई। देखिए, मेरे ख्याल में चीज़ों को बड़ा आसान और सलीस करना चाहिए कि लोगों को, देखने वालों को, पूरी कौम को समझ आ जाए। आपने जितने सवाल किए शुएब साहब से, उन्होंने इतने घुमा फिरा के आपको सारे जवाब दे दिए कि जैसे आईन की किताब उन्होंने पूरी, और कानून की किताब की सारे दफात में हमें लपेट के समझने नहीं दिया कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं और वो क्या बताना चाह रहे हैं। बात बड़ी मुख्तसर है। मुझे ये कहना है कि पेशावर से, टोल प्लाजा से जब आपका काफिला चला पीटीआई का, तो डी चौक पहुंचने तक आपके पास हर मिनट की वीडियो मौजूद है, आपके पास टिकटॉक के सबूत मौजूद हैं, आपके ऑफिशियल पेज पर भी, आपके कारकुनों, आपके लीडर्स के पेज पर भी। लेकिन जहां पे आप क्लेम करते हैं तो गोली चलाने वाली वीडियो आपके पास क्यों नहीं है? गोलियां चल रही है तो कहीं तो लग रही है ना, तो जिस पे लग रही है उसकी वीडियो आपके पास कोई नहीं है। तो इसको हम झूठ ना कहें तो और क्या कहें? और दूसरा मुझे ये बताइए कि मेरे ख्याल में मंसूर भाई आप भी वाकिफ हैं और इरशाद भट्टी साहब को भी पता है, और चूंकि शुएब साहब लॉयर हैं, इनको भी पता है कि एक मशीन गन में जो स्नाइपर बैठा होता है, अगर उसने गोली चलाई तो उसकी बंदूक में कितनी गोलियां होती हैं? उसमें सैकड़ों गोलियां होती हैं, सैकड़ों। और अगर 2 बंदे एक साथ फायर शुरू कर दे तो नीचे कितने 100 बंदे ढेर हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। नहीं, मेरा इख्तियार साहब लिसन मैं सर इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाह रहा।
میرے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دونوں کی سائٹ سے اس طرح لگتا ہے جیسے سچ کو چھپانے کی کوشش ہے. میں نے تحریک انصاف سے تو پوچھ لیا, اب ذرا میں آپ سے بھی ذرا پوچھ لوں, میں آپ کی حکومت سے بھی ذرا سوال کر لوں, یہ کیا چکر ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملنے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے اتنے دن؟ آج علیمہ خان صاحبہ یہ شکایت کر رہی تھی کہ جناب آج لائرز کو جانے دے دیا گیا, خاندان والوں کو ملنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں, پولی کلینک, پیمز وغیرہ, اس سلسلے میں جرنلسٹ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے. ایکسس تو کھولے نا, ایکسس پورا کھولے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیا ہو رہا ہے, تاکہ اس قسم کی چہمگوئیاں نہ ہو, اس قسم کی ریومر مانگنگ نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو آپ کے شو میں, اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے ریلی میں اور ان کے احتجاج میں خیبر پختونخوا کی کالعدم تنظیمیں بھی شامل ہیں. اچھا, میں نے پھر ایک دوسرے شو میں اس کا نام بھی لے لیا تھا کہ کون کون سی تنظیمیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پولیس والے جو تھے وہ سول یونیفارم میں شامل تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں نے آپ کے شو میں یہ بات کی تھی کہ جب تک ان کو خون نہیں ملے گا تو ان کا جو شو ہے وہ ناکام ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ پولیٹیکل سٹرگل پر یقین نہیں کرتے کہ ہم آئے, ہم بیٹھے, ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے احتجاج ریکارڈ کر کے ہم واپس گئے. انہوں نے ہر سٹوری کے بعد ایک ادر سٹوری بنانی ہوتی ہے. جیسے ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے جب ان سے سوال کرنے کا وقت آیا کہ 50 لاکھ گھر دکھاؤ, 1 کروڑ نوکری دکھاؤ, مدینہ کی ریاست اور نیا پاکستان, انہوں نے جیب سے سائفر نکالا. اب ڈی چوک میں یہ ان کی فائنل کال تھی, ڈو اور ڈائی والی کال تھی. ان کے لیڈر زنانہ مردانہ سب کے سب وہاں سے بھاگے ہیں. اب ان سے یہ پوچھنا تھا کہ بھئی تم لوگ بھاگے کیوں ہو, تم لوگ تو فائنل کال کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے لاشوں کی شہرت وغیرہ شروع کر دی. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ہاسپٹلز کی, تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر کوئی بات ایسی ہو بھی, جہاں تک میں وٹنس ہوں, جہاں تک میں باخبر ہوں حکومتی کارروائیوں سے, اور میں وہاں پہ خود آن دا اسپاٹ میں موجود بھی تھا جہاں پہ ڈیسیژن لیے جا رہے تھے, وہاں پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ رینجرز یا پولیس جو ہے اس نے گولی چلانی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ایک سنائپر اگر اپنی میگزین خالی کرے اس سے سینکڑوں گولیاں نکلتی ہیں. اگر وہ 10 15 20 بندے گولیاں خالی کرے تو ادھر کوئی زندہ بچے ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. یہ اگر فائرنگ ہوئی ہے, کسی کو گولی لگی ہے, تو پھر وہی بات ہے کہ جنہوں نے رینجرز پر گاڑیاں چڑھائی, جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو مارا, یہ وہی لوگ ہیں. اور یہ ان کی اپنے جتھے میں مسلح لوگ شامل تھے اور ان کی اپنی کارستانی ہے تاکہ ان کے خون آلود پروگرام اور احتجاج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گولیاں چلانے کا یہ بھی پی ٹی آئی نے خود کیا ہوگا. This is what you're saying. اتنے بے رحم لوگ ہیں کہ آپ ان سے کوئی بعید نہیں کر سکتے. اتنے ظالم لوگ ہیں, ان کے سینوں میں دل نہیں. ارشاد بھٹی صاحب, اور عمران خان یہ پہلے ثابت کر بھی چکے ہیں, جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کے سٹیج سے یہ بھٹی صاحب ہم لوگ چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سر, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیے سر, کس طرح یہ فیصلہ ہوگا سچ اور جھوٹ کا ان دونوں کے درمیان, سر کس طرح فیصلہ کریں؟ دو بھائی جان سوال آپ کے تھے. پہلا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اور دوسرا اس احتجاج اور مارچ میں لوگوں کے مرنے کا. پہلے کس پہ بات کرنی ہے؟ سر تحریک انصاف کے مارچ کا, یہ جو میں نے چلیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو ناکامیاں کی وجوہات جو ہماری نظر میں تھی وہ تو ہم نے شیئر کر دی. آپ بتائیے, اگر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پلیز گو ہیڈ. پہلے آپ نے جیسے کہا کہ تحریک انصاف پہ بات کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کا پہلے دن سے ہی آپ کو پتہ ہے تنظیمی ڈھانچہ کیسا ہے. باہمی اختلافات ہوتے, باہمی اختلافات کیسے رہے, باہمی لڑائیاں, گروپ بندیاں, اور پھر جب 9 مئی ہوا تو پارٹی 3 حصوں میں ٹوٹ گئی. پھر 3 سال سے مشکل ترین وقت پاکستان تحریک انصاف پر, پھر عمران خان کی عدم موجودگی, پھر ایک وکیلوں اور سیاستدانوں کا جو پاکستان تحریک انصاف میں آ گیا, ان کی آپس کی لڑائی, پھر رانگ نمبر اور بروٹس جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں, جو کمپرومائزڈ لوگ ہیں, وہ جب آ گئے. پھر علیمہ اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی معاملے پر
ज़बान कुछ और कहती है, होमवर्क कुछ और कहता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं इनका प्रॉपर होमवर्क नहीं होता, अगर हाई कोर्ट में पेश होते हैं प्रॉपर होमवर्क नहीं होता, लेकिन जब टीवी चैनलों पर बैठते हैं तो लगता यूँ है कि जैसे बस ये कल जाएंगे अदालत में और मलिया मेट कर देंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो कुछ भी नहीं पास होता। फिर 18 बार, अभी शोएब सईद साहब कह रहे थे कि शायद वो जवाब उन्होंने दिए ही नहीं, लेकिन 18 बार इमरान खान कह चुके हैं कि खुदा के लिए पार्टी में इख्तलाफात ना पैदा करो, आपस में मिलकर हमें जिससे लड़ना है उससे लड़ें, आपस में ना लड़ें। अलीमा खान कह चुकी हैं कई बार कि सब अपने अपने धंधों में गुम हैं और मेरा भाई अकेला रह गया है। बुशरा बीबी की ये जो आखिरी मीटिंग हुई ये कोर कमेटी की, उसमें उन्होंने कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, जो आए नहीं इस इhtजाज में। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का शिकवा आपके सामने है कि अगर आपके पास वक्त हो तो कोट लखपत जेल भी आ जाएं, हमारा भी तजर्बा है। फिर पार्टी कारकुन आज इनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लाहौर नहीं पहुँच पाते वक्त पर, आप पिंडी हम मारे खाते रहते हैं, आप नहीं पहुँच पाते, आप स्पाइडरमैन और सुपरमैन और बैटमैन बन के चाइना चौक से गायब हो जाते हैं और केपी असम्बली से निकलते हैं, हमें यहाँ अकेला छोड़ जाते हैं। और इस बार जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर यूँ बुज़दिली से भागे कि जिसका कोई ना अंत है ना कोई शुमार है, और निहत्ते कारकुनों को ये छोड़ कर गए गोलियों की बुछाड़ में और आंसू गैस की बुछाड़ में, जो इनके साथ 78 घंटों के बाद 18 जगह पर आंसू गैस शेलिंग सहने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। और मैं जब ये पेशावर मोड़ पे पहुंचा था, मैं उस वक्त भी इनके पास पहला यानी वहाँ मौजूद था, जब सेंटोरस में पहुंचा पहला वहाँ मौजूद था, फिर जब ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त भी था। और आंसू और रोते हुए कारकुनों को मैंने देखा है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी हुई थी, सुर्ख हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, पाँव में जूते नहीं थे। मैंने लेकिन इतना मोटिवेटेड, इतना मुखलस और इतनी ज़्यादा तादाद में कारकुनों को नहीं देखा जितना इस लॉन्ग मार्च में। बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि जब इमरान खान लाहौर से आए थे उनके साथ भी इतने लोग नहीं थे जितने इस बार इस्लामाबाद में आए। और फिर उसके बाद आपने किया क्या कि आप जब गोलियां चली तो आप पतली गली से निकल गए, और फिर उसके बाद आपने अजीबो गरीब बातें शुरू कर दी अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने, कि मरियम वट्टूक से ट्वीट करवा दिया कि वो तो हमसे बेजाब में थी, वो भी झूठ निकला। मिशाल यूसुफजई से कह दिया वो तो एक गाड़ी से बैठकर दूसरी गाड़ी में जाए, वो तो डी चौक आने में मानसहरा का 2.5 घंटे का सफ़र है। फिर मैं इनसे ये मैच फिक्स करके आए थे या बुज़दिल निकले, इसमें कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जब ये 5 काफिले मंसूर भाई अंदर दाखिल हुए इस्लामाबाद के, तो उस वक्त मजीद सख्ती कर दी थी हुकूमत ने। जो 2-4 रस्ते इस्लामाबाद के थे वो बंद कर दिए, जो 2-4 हमारे लिए भी थे, फिर हम पैदल फिरते रहे। अच्छा। यानी हम ऑफिस जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, और मोटरवे सख्त, जीटी रोड सख्त। और फिर ये काफिला 4 गाड़ियों का मानसेरे कैसे पहुंचा, ये भी बड़ा सवाल है। और फिर सोहेल वड़ाई साहब का कालम की एक जगह शनाख्त हो गई कि ये बुशरा बीबी एक पुलिस नाके पे, तो उन्होंने फ़ोन किया तो उनको कहा जाने दें। मतलब कि या तो ये भी हो सकता है कि जीरो से हीरो ना हो जाएं या गिरफ्तार ना हो जाएं, ये भी हो सकता है कि उन्होंने जाना ही था। उसमें तो उन्होंने भट्टी साहब लिखा हुआ है कि इसी वजह से छोड़ दिया गया कि कहीं हीरोइन ना बन जाए, ये लफ्ज़ उन्होंने लिखा है। और मैं आपको ऑथेंटिकेट करके इतनी बात बता सकता हूँ कि सोहेल वड़ायत साहब के पास आजकल जो कबूतर है वो खबर बिल्कुल एक्यूरेट लेकर आता है। मुझे पता है वो कबूतर कौन है, वो बिल्कुल खबर एक्यूरेट खबर लेकर आता है। हाँ, लेकिन मंसूर भाई ये तो एक था ना, ये तो एक था। मैं कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करे ये हुकूमत, अल्लाह का फजल अदा करे ये हुकूमत। और अगर कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है तो अली अमीन गंडापुर को और बुशरा बीबी को दे कि अगर उस रात बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर रुक जाते तो 2 ऑप्शन थे, या ऑपरेशन नाकाम हो जाना था या आज हुकूमत ने इमरान खान के साथ बैठे होना था। क्योंकि इतना चार्ज क्राउड था, इतने लोग थे, और खुदा न खास्ता अल्लाह ने कोई बड़े नुकसान से बचा लिया। अब आ जाएं इस बात पे कि ये जो हुकूमत ने किया है, मैं कमाल, एक होते हैं जालिम और जालिम के साथ ऊपर से हो ना झूठे, तो वो एक अजीबो गरीब सिचुएशन हो जाती है। यानी मैं कभी भी इस हक में नहीं रहा कि आप सड़कों पर निकल कर हुकूमत गिराएं या सड़कों पर निकल कर मुतालबात मनवाएं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये कह रहे हैं कि कोई ना गोली चली है, ना कोई ज़ख्मी हुआ है, ना कोई मरा है गोली से।
भाई 3 डेथ सर्टिफिकेट्स तो जियो छाप चुका है, 4 हामिद मीर साहब बता चुके हैं, 5 हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं, 12 तरीके इंसाफ बता रही है, 5 BBC बता रही है, 17 गार्डियन बता रहा है। और अगर छोड़ दें सारे, आपको पता है, मुझे भी पता है कि जब ये बरतानिया में कोई मामला हो तो वहाँ अपने हाई कमिश्नर को कहें कि गार्डियन और BBC के खिलाफ ज़रा हरजाना करें और इनके केस करें। अगर ये हुकूमत ये केस जीत जाती है तो हम सारे मिलकर इनको कहेंगे कि ये तरीके इंसाफ वाले झूठ बोलते हैं। हाँ। लेकिन सैकड़ों लोग पिम्स और पोली क्लिनिक के डॉक्टर्स के वो कहते हैं हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सर्जरीज नहीं की जितनी उस रात की हैं, पूरी जिंदगी में इतने पेशेंट्स नहीं आए जितनी उस रात आए हैं। तो ये आपने जुल्म किया, ऊपर से आप झूठ बोलते हैं। आप कह दें कि भाई आप आए थे हमला करने के लिए, जैसे हुकूमत बयानियां बनाती है, हमने उससे बचाने की कोशिश की। जो रेंजर्स के जान से गए हैं, जो पुलिस एहलकार जान से गए हैं, वो भी उतने ही कीमती हैं जितने ये सिविलियन है, और सिविलियन भी उतने ही कीमती हैं जितने वो हैं। तो ये तो जुल्म ना करें। तो दोनों तरफ से एक झूठ। और फिर वो लतीफ़ खोसा साहब 278, कोई है इस मुल्क में कोई बंदा कि जो किसी को अकाउंटेबल कर सके? जो ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग, कोई बंदा नहीं, कोई वाली वारिस नहीं, जिसका जो चाहता है फिगर उठा के दे देता है। और ऊपर से फिर हुकूमत, अब सोचिए, जब हुकूमत असल फिगर्स नहीं बताएगी तो फिर वो नकली फिगर्स पे 2019 के तलत हुसैन का मैं सुन रहा था, वो कुरम की पारा चनार का वो जो उनका एक क्लिप था वो उन्होंने इस पे लगाया हुआ था। वो पूरा व्लॉग सुने तो वो पारा चनार की बात कर रहे थे। जावेद चौधरी एक तंज कर रहे थे कि हाँ जी 278 ही मरे हैं, लाशें मुझे पता है कहाँ हैं, वो भी लगाया हुआ था। तो जब हुकूमत झूठ बोलेगी तो फिर जो सोशल मीडिया है, जो बाकी सारा है, वो तो खेलेगा। तो अब ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं क्या कि पता नहीं दुनिया जहान के जो सारे वारदातिये थे वो इस ब्राजील से आंसू गैस आई थी सर, दुनिया जहान के बुरे लोग इसमें थे। और फिर नहीं तारिक साहब ने कहा सारे इस्लामाबाद आज डीपीओ अटक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जो आंसू गैस हमारे पे फेंकी गई है वो ब्राजील से आई थी सर। उन्होंने कहा ब्राजील से मंगवाई गई थी। जी ब्राजील से। आप पता नहीं इमरान खान साहब रात को कहीं निकले होंगे आंख बचा के, तो उन्होंने ब्राजील ऑर्डर किया होगा तो वो सारे आ गए होंगे। और मजे की बात मैं इस हुकूमत पे कि ब्राजील से आंसू गैस आ गई और ये हुकूमत को नहीं पता चला। मुराद से इधर से बकौल इनके डी चौक से होके चला गया, इनको नहीं पता। मैं सर एक ब्रेक का सर दोनों तरफ से ऐसे ही हो रहा है जी। मैं सर एक ब्रेक, दोनों तरफ से भट्टी साहब फरमा रहे हैं ऐसे ही हो रहा है। तो फिर ये दोनों तरफ आखिर मामला हल किस तरह होगा? क्या इसी तरह ही झूठ का ये खेल चलता रहेगा, लोग बेवकूफ बनते रहेंगे? बात करते हैं ब्रेक की बात। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इरशाद भट्टी साहब अपना तजिया दे रहे थे ब्रेक से पहले। मैं शुएब साहब, एक और जो बात सामने आई और ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी आपकी जमात के लिए, अली मोहम्मद खान साहब की एक ऑडियो जो है वो कल सामने आई। बाय द वे मैं आपको अभी से वार्न कर दूं कि एक और ऑडियो भी आने वाली है। ये अली मोहम्मद खान साहब की नहीं, लेकिन एक और ऑडियो भी अनकरीब आपकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली है और वो आने वाली है। मैं अभी सिर्फ आपको ये हिंट दे रहा हूँ और वो बहुत एम्बैरेसिंग होगी आपकी जमात के लिए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ने नाज़रीन इस ऑडियो में क्या कहा है ज़रा सुनिएगा। गौर साहब और ये जो फिर वापस आए हैं तो अगली सुबह उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफिंग दी कि खान साहब ने जो है वो इजाज़त दी है कि आप अगर संजानी बैठना चाहते हैं तो बैठें, संजानी बैठ जाएं और इस दौरान नेगोशिएशन कर लें, 1-2 दिन देख लें, उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि हमें आगे जाना है क्या। खान साहब ने एक तो स्पेसिफिकली डी चौक का नहीं कहा था, इस्लामाबाद का कहा था और इस बात के बहुत से गवाह उधर अदालत के मौजूद हैं। ये जो खान साहब की डायरेक्शन थी कि संजानी बैठ जाएं, इसको मेरे ख्याल में 25 तारीख को ही चेयरमैन गौर साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को उसी वक्त ऐलान कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल में यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई है कि जब खान साहब ने इजाजत दे दी थी संजानी बैठने तो हमें नहीं जाना चाहिए था। अब किसको पता था कि आगे क्या होगा? ना हमें पता था, ना बीबी को पता था, ना गौर साहब को पता था, ना सीएम साहब को आगे अगर जाएंगे तो क्या होगा। मेरे ख्याल में हमसे गलती ये हुई कि हमें अपने लीडर के हुक्म पे अमल करना चाहिए था, हमें उनको ये मौका नहीं देना चाहिए था। ये शुएब साहब आपने गुफ्तगू सुनी तो बेसिकली तो लीडर ने जो कहा था, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि वो उस पर अमल नहीं हुआ, लीडर की जो बेगम ने कहा था उसके ऊपर आप लोगों ने अमल करने की कोशिश की।
देखें, ऑडियो लीक्स की पहली बात तो यह है कि ऑथेंटिसिटी क्या होगी, और नहीं सर वो मान चुके हैं, सर वो मान चुके हैं, उन्हीं की आवाज है, अली मोहम्मद खान साहब मान चुके हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, ये दुरुस्त है। तो मुझे बता दें कि जब आप किसी मीटिंग में बैठते हैं तो इख्तलाफ राय और डिस्कशन, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, तो मेरा ख्याल है कि ये तो डिस्कशन का एक हिस्सा हुआ करता है। उसका ये मतलब थोड़ा है कि कोई इख्तलाफ हो गया या ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बता दें कि हम जब अभी 26 नंबर चुंगी में पहुंचे थे, वहाँ गोलियां चली, हमारे लोग कई जख्मी हुए, और इसी तरह जब दाऊद खेल के पास थे हमारा डी खान और बलूचिस्तान और मियांवाली का काफिला आ रहा था, वहाँ गोलियां चली, बुलेट इंजरीज लगी। इन्होंने, अगर हम संगजानी में बैठे थे, हम संगजानी का पिछला जलसा किया इनकी इजाजत के साथ, हाई कोर्ट के 6 आर्डर थे, मैं अगले दिन दफ्तर में बैठा हूँ, मेरे समेत पार्लियामेंटेरियन समेत सबको उठा करके लेके जेलों में डाल दिया कि जी आपने गलत कर दिया, आपने असला छीना और एसएचओ की गन पट्टी पे रखा और किसी को गोली मारी, किसी को पता नहीं क्या किया। बात यह है कि इन्होंने वहां भी यही काम करना था, यहाँ भी ये करना था, ये इशू नहीं है। इशू, सवाल ये है कि इस्लामाबाद में आना, इस्लामाबाद में आके एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, ये हमारा बुनियादी इंसानी हक है। अब मुझे बता दें कि हमारे जमाने में ये लोग आए थे, ये मरियम नवाज और पीटीएम की जमातें आई, बिलावल भुट्टो आया, मौलाना फजल रहमान 2 दफा आए, हमने तो फैसिलिटेट किया, कितने हमने खिलाफ पर्चे किए, और इन्होंने 5 दिन के लिए पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। किसी को ना आने की इजाजत थी, ना जाने की इजाजत थी, 200 अरब रुपए रोज का नुकसान किया। और ये इनको किसने अख्तियार दिया था कि आप पूरे पाकिस्तान के नेट, टेलीफोन और ये रास्ते और ये सब कुछ बंद करके बैठ जाएं, और एक जमात आ रही है कि जी अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो आएंगे चले जाएंगे, आप इंगेज करते, आप पहले दिन बता देते। पहले दिन जो इनसे बात हुई उन्होंने कहा कोई संगजानी नहीं, कोई इस्लामाबाद नहीं, आप अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं, आप यहाँ आ करके दिखाएं, आपको यहाँ आने का भी कोई हक हासिल नहीं है। देखें, इस तर्ज अमल से ये कोई भी रियासती इदारे इस तरह नहीं किया करते। ठीक जी सर, मैंने कहा सर इख्तियार साहब आपकी बात पे नफी में सर हिला रहे हैं, पता नहीं क्यों वो आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों इख्तियार साहब क्यों आप डिसएग्री कर रहे हैं सर? ये क्या आप लोगों ने नेट बंद नहीं किया, क्या आप लोगों ने नेट स्लो नहीं किया? इस वक्त हर पाकिस्तानी इस वजह से तंग आया हुआ है कि आप लोगों ने नेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सर आप लोग खुद चीजों को इंस्टिगेट करते हैं। मैं 2 चीजें आपको बताना पसंद करूंगा। एक तो शोएब साहब जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने कहा था कि अटक पुल को क्रॉस करके देख, किसने कहा है? किसी ने कहा है? नहीं कहा है सर, नहीं कहा है, आपके डीपीओ अटक ने कहा है सर, मैं नाम लेके बता देता हूं, डीपीओ अटक ने कहा है, उसने कहा, ये उसने एक इंटरव्यू दिया है एक वेब चैनल को, उसने कहा अटक इज द रेड लाइन, यू कैन नॉट क्रॉस द रेड लाइन। ये जो कह रहे हैं ये उसका हवाला दे रहे हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि आप अटक पुल क्रॉस करिए, उसके कॉन्टेस्ट में है। जब 8 सितंबर को संजानी में अली अमीन ने कहा था कि हम लाहौर आ रहे हैं और हम ये करेंगे, और गलीज जबान उसने इस्तेमाल की थी, ये उसके कॉन्टेस्ट में ये बात की। डीपीओ तक ने भी कहा इस वक्त किसी डीपीओ की बात नहीं हो रही है, पॉलिटिकल लोगों की बात हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हो रही है, या हुकूमत के वजीरों की बात हो रही है, या जो फैसला साज लोग हैं उनकी बात हो रही है। भट्टी साहब ने बातें की, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। भट्टी साहब, आज तो आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंगेज करते, थोड़ा सा इसके साथ वो करते या ये करते, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही है और कह दें कि जी उन्होंने हमला किया था तो हमने फायर कर दिया और हमने गोली मार दी। भट्टी साहब, जब ऐसे हालात होते हैं और ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं और चले जाते हैं, जब हम सिर्फ रास्ता भी बंद करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आपने इनको रोका क्यों, क्या एहतजाज का हक नहीं हासिल, ह्यूमन राइट्स कहाँ चले गए? तो एक जगह पे हमें थोड़ा सा ये चीज तय करना होगी कि एहतजाज का जो दायरा कार है वो क्या होना चाहिए, और एहतजाज महीने में कितनी बार होना चाहिए, और आपकी मुल्क की इकोनॉमी क्या है आपको खुद नहीं पता, मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, आप ज्यादा बाखबर इंसान हैं कि पाकिस्तान की कितनी फ्रेजाइल। चले मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैं इख्तियार साहब मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप छोड़ दें बाकी सारी चीजें छोड़ दें, मैं आपसे पूछ लेता हूं, महीने में कितनी दफा एहतजाज होना चाहिए आपके ख्याल में? पाकिस्तान तहरीक साहब कितनी दफा एहतजाज कर सकती है आपकी इजाजत से? अगर 3 महीने करना हो तो महीने में एक बार भी बहुत है। नहीं आप कह रहे हैं महीने में एक दफा करे, महीने में एक दफा करे सर, महीने में एक दफा करे। 1 मिनट सर आप बता देना, मैं बताता हूँ। आपकी इकोनॉमी में अगर गुंजाइश है आप महीने में 10 बार कर। अरे सर आप सर छोड़ देना,
इख्तियार भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में महीने में कितनी दफा करें? बताइए। मैं बताता हूँ, एहतजाज से इनको कुछ मिलना नहीं है जब तक एहतजाज में सर मैं ये सवाल नहीं कर रहा ना इख्तियार साहब, मैं इख्तियार साहब ये सवाल कर रहा हूँ सर, आपकी नजर में महीने में कितनी दफा एहतजाज करना चाहिए, इकोनॉमी को देखते हुए, हालात को देखते हुए, मुल्क को देखते हुए? आप बता दीजिए। 9 महीने पहले अगर मुल्क में इलेक्शन हो चुका है तो देयर इज, मेरे मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा चले भाईजान, किस बात की? अच्छा जी नहीं होना चाहिए, अच्छा होना ही नहीं चाहिए, तकरीबन होना ही नहीं चाहिए, छोड़ दे, एहतजाज ही नहीं होना चाहिए। तो ये कर चुके हैं सर, मैं ये कर चुके हैं, इख्तियार साहब उसका हासिल वसूल किया है। सर मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, आप इजाजत दे दीजिए, हुकूमत इजाजत दे दे, बता दे भाईजान आप 3 महीने में एक दफा एहतजाज कर ले, भाईजान आप 6 महीने में एक दफा एहतजाज कर ले, भाईजान आप साल में एक दफा एहतजाज कर ले। मैं आपसे पूछता हूँ हुकूमत से, सर आप बता दीजिए ये कितनी दफा एहतजाज कर सकते हैं, बता दीजिए। मैं आपको, इनको आप इतना भाईजान अगर कह रहे हैं, मैं आपसे तो भाईजानों से पूछ, मैं आपसे पूछ तो मैं इनसे पूछा कि हमने इनको जब कहा कि आप आ जाए संजानी पे जलसा करें तो ये क्यों नहीं बैठे? सर मेरा सवाल कुछ और है इख्तियार साहब, मेरा सवाल दोबारा कुछ और है, बिकॉज आपने मुझे एक ऐसी तजवीज दी है, मैं उस तजवीज के ऊपर अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी दफा एहतजाज करने की इजाजत देते हैं हुजूर, आप बताइए कितनी दफा ये एहतजाज कर सकते हैं? देखिए, एहतजाज इतने लिमिट में हो कि जिससे आपकी मुल्क इकोनॉमी सर मैं इख्तियार साहब दोबारा आपसे पूछता हूँ सर, वो सारा तमीज में, तमद्दुन में, बड़े प्यार मोहब्बत से हाथों में फूल पकड़े हों, कोई डंडा नहीं, कोई गैस नहीं, कोई कुछ नहीं, कितनी दफा कर सकते हैं? मैं ये दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, कितनी दफा? अगर ये एक स्पेसिफिक जगह पर आकर करें, ठीक है, आए महीने में एक बार आ जाए, महीने में एक दफा आ जाए। सर कहाँ पे आ जाए बता दें, कहाँ पे आके, कहाँ पे? संजानी है, संजानी में आ जाए, महीने में एक दफा आ जाए, महीने में एक दफा आ जाए, संजानी आ जाए, वहां पर एहतजाज कर लें। ठीक है, आजू बाजू और बड़ी सारी जगह हैं, लेकिन ये मैं समझ गया सर। सर आप मुझे नहीं बोलने दे। नहीं मैं सर, मेरा सवाल का जवाब आपने दे दिया ना, मैं तो मुझे आपने जवाब दे दिया, आपने कहा संजानी में आ जाए, सर आपने कहा संजानी में आ जाए, महीने में एक दफा आ जाए, तमीज के दायरे में एहतजाज करें, ऐसा ही है ना सर? भाईजान मैं ये कह रहा हूँ कि हर बार हर हफ्ते डी चौक में आना, हर 10 दिन बाद डी चौक में आना, बिल्कुल ठीक, इस्लामाबाद में आके इस्लामाबाद की शहरगें बंद मत करें, स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश कर देना। डू यू थिंक सो इट्स अ पॉलिटिकल? नहीं बिल्कुल आप समझते हैं बिल्कुल ठीक, ये क्या ये मतलब सियासी एहतजाज है? मैं यही कह रहा हूँ कि एहतजाज आप भले महीने में 2 बार करें, लेकिन डी चौक वाला ये जो आपने बनाया हुआ है ना, ये वतीरा, इसको छोड़ना होगा। ये आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खेलते हैं। ठीक, आप मुल्क की भट्टी साहब, सर मुझे इजाजत दीजिए, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। भट्टी साहब, इस तरह प्यार मोहब्बत से किस तरह एहतजाज होगा सर? मतलब ये वो मेरे ख्याल में वो इख्तियार साहब कहना चाह रहे हैं, आप एक दफा पहले ना सुबह के वक्त चेक करेंगे स्टॉक मार्केट आज कितने पॉइंट्स पे खड़ी हुई है, कहीं क्रैश तो नहीं कर रही, आपकी वजह से स्टॉक मार्केट खराब तो नहीं हो रही। इजाजत लें हुकूमत से, जगह का तयन करवाएं कि भाईजान यहाँ एहतजाज कर लें, फिर एहतजाज करें अगर आपने करना है। ये तरीकाकार होना चाहिए भट्टी साहब एहतजाज करने का। देखिए, असल बात यह है कि भाईजान ये इhtजाज शुरू क्यों हुए, कभी इस पे भी आपने कई बार बात हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर कर लेते हैं। ये इhtजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसलिए शुरू किए कि इनको जलसों की इजाज़त नहीं मिलती थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कोई 8-9 मरतबा अदालतों के हुक्मनामे के बाद जब ये DPO या जो कमिश्नर या DC के पास जाते थे तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता था, कोई चीज़ आड़े आ जाती थी, मुहर्रम आड़े आ जाता था, अगला महीना आ जाता था, कोई दौरा आड़े आ जाता था। तो हुआ ये कि 2 जलसों की इजाज़त मिली, वो भी 40-40 शर्तों के साथ, अजीब व गरीब भोंडे अंदाज की शर्तें कि इतने बजे से इतने बजे तक आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक कानून साजी भी इन्होंने कर दी कि अगर बगैर इजाज़त के जलसा किया तो 3 साल, दोबारा बगैर इजाज़त किया तो 10 साल। अब मुझे बताएं कि जब ये इख्तियार वली साहब की अपोजिशन में थे तो बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च आया, मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च और धरना आया, हमज़ा और मरियम के जलसे जलूस हुए, PDM के कोई 60 के करीब जलसे हुए जिसमें नवाज शरीफ साहब लंदन से खिताब किया करते थे। कभी कोई इस तरह की कानून साजियाँ, इस तरह की मज़ा खेज चीज़ें, और फिर जलसा करने कहाँ दिया? एक संजानी बकर मंडी, दूसरा काना। नहीं भट्टी साहब गलत सुनो ना, भट्टी साहब उनका ये कहना है बार बार जलसे, बार बार एहतजाज, मतलब हाथ हल्का रखे हुए। सर मेरा सवाल भी ले ले
क्या बिलावल साहब का जो लॉन्ग मार्च था उसमें, मौलाना फजल रहमान का जो लॉन्ग मार्च था उसमें, या हम जो साथ थे उसमें कोई बंदूक आपको नजर आई? जी भट्टी साहब, किसी का खून आ गया पॉइंट सर, बहा, सर पॉइंट आ गया, कत्ल हुआ? पॉइंट आ गया सर भट्टी साहब। जी भट्टी साहब, इस पे भी जरा कहिए। जी भट्टी साहब। भाई अगर भाईजान इस तरह हम बात शुरू कर दें तो मैं आपसे ये कह दूं कि जब इनके जलसे आप जलसे कर रहे थे तो इन्होंने इतने क्रैकडाउन किए, इस तरह इतने दफ़ा 100 आधे पाकिस्तान पर 144 लगाई, मोटरवे बंद कर दिए, जीटी रोड बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, इस तरह घरों में घुसकर लोगों को उठाया, इस तरह घरों में घुसकर आम लोगों के कारकुनों की मैं कई मरतबा कई मिसालें ऐसी, बीवी अंदर, मियाँ भागा हुआ है, बीवी अंदर, बेटी अंदर, माँ अंदर, इस तरह कभी इन्होंने क्रैकडाउन आपके किए थे? तो ये एक वो है जो दायरों का ना चलने वाला, आप अगला करेंगे मैं उसके बाद अगला करूंगा, मैं आप अलग। इशू ये है भाईजान कि अगर आप कहते हैं कि आप जमहूरी हुकूमत हैं, आप जमहूरियत पे कोई 5% भी यकीन रखते हैं, तो इनको कोई हक नहीं है कि आप कहें कि भाईजान ये डी चौक पे नहीं आना, भाईजान इस रेड लाइन से आगे अब आपने अबूर नहीं करनी। लेकिन आप जहां जी चाहता है जलसे करें, जहां जी चाहता है मुजाहरे करें, जहां जी जाता है जो करें। एक मरतबा इन्होंने अगर वो 9 मई किया है जिसमें अभी तक उस दलदल में है, दोबारा ये कैसे कर सकते हैं? तो बात ये है कि जब आप सख्तियां बढ़ाएंगे, जब आप किसी को आप कहते हैं कि इनका मैंडेट भी हम ले लें, मखसूस नशिस्तें भी हम ले लें और बाकी सियासी स्पेस भी हम ले लें और फिर उसके बाद ये जलसा जुलूस ना करें और वो भी हमारी मर्जी के मुताबिक, तो फिर एक कानून पास कर दें। वैसे भी आजकल कानून आप कर सकते हैं कि महीने में एक जलसा होगा और फलां जगह पे होगा और उधर करके तो आप उसके बाद आप गायब हो जाएंगे। सही। तो क्या किया जाए? दोनों तरफ से कहीं भी कोई नहीं है। और आखिरी बात वही है कि जब तक ये बुनियादी मसले हल नहीं होते मंसूर भाई, ये इसी तरह चलेगा। 9 मई है, उसको हल करना है, इलेक्शन धांधली उसको हल करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात समझना है, बिला जवाज जो मुकदमे गिरफ्तारियाँ क्रैकडाउन ख़त्म करना है, सियासी स्पेस उन्हें देनी है। ये जब तक मसले आप हल नहीं करेंगे, ये मुल्क इसी तरह ही, कोई आ रहा है तो कोई रोक रहा है, कोई रोक रहा है तो कोई आ रहा है, इसी तरह चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, इख्तियार वली साहब, शुएब शाहीन साहब। मेरा वक्त ख़त्म हो गया वरना इस डिस्कशन को मैं मज़ीद आगे बढ़ाता। नाज़रीन, आखिर में पॉइंट सिर्फ ये है, इस सियासी कश्मकश में, इस एहतजाज में सिर्फ और सिर्फ नुकसान एक आम पाकिस्तानी का होता है। चाहे वो स्टॉक मार्केट गिरे, चाहे वो कोई शख्स ज़ख्मी हो, कोई रेंजर्स का एहलकार जाँ बहक हो, या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जाँ बहक या ज़ख्मी हो। आखिर नुकसान एंड में एक पाकिस्तानी का होता है। ये तासुर देना कि एक तरफ एक पाकिस्तानी और वो दूसरी जानब उसका मुकाबला करने के लिए भी एक दूसरा पाकिस्तानी, ये तासुर हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से हो, कानून नाफिज करने के हवाले से हो, अदालतों के तरीक़ाकार के हवाले से हो, या हमारी पार्लियामेंट को चलाने के हवाले से हो। जब तक वहाँ पर आपको इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा, तब तक इस तरह के एहतजाज भी होते रहेंगे और इस तरह के नारेबाजी भी होती रहेगी और इस तरह के लॉन्ग मार्च भी होते ही रहेंगे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।